हेलो एवरीवन, दिस इज अफजल रहमान। सो आज की क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके ना। सो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसको विदिन 5 मिनट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ओके ना। एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड, ओके। सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. How we can prepare this alcohol? In our last class, we have discussed 4-5 methods of preparation of alcohol. Okay, now first of all we have seen that these alcohols can be prepared from alkyl halide. From alkyl halide, okay ना. Alcohols को हम लोग alkyl halide से prepare कर सकते हैं, okay ना. The formula of alkyl halide we know. So first of all from alkyl halide, we know the formula of alkyl halide is RX. R means alkyl, X means halide, alkyl halide, ओके ना। अगर किसी alkyl halide को अगर हम लोग aqueous NaOH और aqueous KOH से ट्रीटमेंट करेंगे, aqueous sodium hydroxide और aqueous potassium hydroxide, और if we treat this alkyl halide with aqueous silver oxide, ओके ना, aqueous silver oxide, we can get alcohol. हम लोग लास्ट क्लास में इस रिएक्शन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज we have this CH3 bond CH2 bond Cl, ethyl chloride or chloroethane. When this ethyl chloride or chloroethane is treated with aqueous NaOH means aqueous sodium hydroxide, or you can take aqueous potassium hydroxide, okay, but this reagent should be in aqueous condition. Because if we apply this aqueous NaOH, then substitution reaction takes place. अगर आप लोग यहाँ पे अगर alcoholic अगर हम लोग यूज करेंगे alcoholic NaOH, okay ना, we cannot get this alcohol, हम लोग को alcohol नहीं मिलेगा, okay ना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग को aqueous NaOH यूज करना पड़ेगा, ओके ना। तो when this alkyl halide is reacted with aqueous NaOH, we can get alcohol. कैसे मिलेगा देखो यहाँ पे, this one is Na plus OH minus del plus del minus. ये क्लोरीन जो है this is more electronegative than this carbon, so consequently this will be del minus. The electron density will be over this chlorine, okay. So del minus del plus means this carbon is electron deficient, okay. So here this OH minus will attack this carbon. As a result, this Cl will be released and it will attach with this Na and it will form NaCl. So ultimately we will get CH3 bond CH2 bond OH plus NaCl. Ethyl chloride plus aqueous NaOH gives ethanol plus sodium hydroxide. This reaction is a SN2 type reaction, okay. इस रिएक्शन को अगर हम लोग इसमें अगर aqueous सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हैं ना, तभी हम लोग को अल्कोहल मिलेगा। सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस AgOH, ओके ना। AgOH इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी अगर हम लोग यूज करेंगे तभी हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है, ओके ना। कैसे मिलेगा देखो यहाँ पे, दिस इज del plus del minus Ag plus OH minus, ओके ना। सो हियर यू सी CH3 CH2 plus and OH, CH3 CH2OH plus AgCl. So you will get CH3 bond CH2 bond OH plus AgCl, silver chloride, okay na. So from this alkyl halide we can get this alcohol, but the condition is that you should use aqueous NaOH और aqueous KOH, okay ना। अगर aqueous NaOH और aqueous KOH अगर हम लोग यूज करेंगे तभी ये जो रिएक्शन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर अल्कोहलिक NaOH और KOH अगर यूज करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। देन हम लोग को अगर अल्कोहलिक यूज KOH और NaOH अगर यूज करेंगे तो भी हम लोग को अल्कोहल नहीं मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगा, ओके ना। सो हियर दिस aqueous कंडीशन इज नेसेसरी, ओके ना। हम आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, किसी रिएक्शन में यहाँ पे aqueous लिखा नहीं रहेगा, ओके ना। आप लोग ऐसा रह सकता है, ऐसा लिखा हुआ रह सकता है CH3CH2Cl plus NaOH in presence of H2O. Ultimately this is aqueous NaOH means ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, ओके ना। सो दिस इज कॉल्ड aqueous NaOH or aqueous KOH, okay. So this is the first reaction. By following this reaction we can prepare this alcohol. This is the first method that we have already discussed in our last class. Number 2 is that हम लोग ने नेक्स्ट रिएक्शन देखा था, एस्टर से हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। Can you remember how we can prepare this alcohol from this ester? हम लोग को पता है अगर एस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, ना। अल्कोहल एस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके ना। सो नंबर 2, सेकंड मेथड इज दैट, नंबर 2 इज
फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एस्टर। हम लोग को पता है एस्टर का फॉर्मूला क्या है, RCWR। RCWR ये एस्टर का फॉर्मूला है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3 अगर RCOOR, so this is one type of ester। इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस मिसाल यहाँ पे वाटर यूज करते हैं, ओके ना, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो दिस वन इज डेल माइनस, दिस वन इज डेल प्लस, और दिस H2O, ये H2O को हम लोग HOH ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, so it will break this bond to form CH3OH, so it will form CH3OH methanol plus CH3 bond C double bond OH, CH3 bond C double bond OH। देखो यहाँ पे एस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ओके ना। अभी यहाँ पे देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे तभी हम लोग को अल्कोहल भी मिल सकता है ना। तो फर्दर अगर इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, सपोज LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये लेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ना। सर कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे देखो हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं ना, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे है आपका पाई बॉन्ड, जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ना, ये पाई बॉन्ड का ये तो वीक बॉन्ड है, ये टूट जाएगा यहाँ पे, टूट जाने से क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, ओके ना। सपोज हम लोग 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H2 हम लोग यूज कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गया और बाकी देखिए 2 हाइड्रोजन, सो बाकी 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा, होने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो अल्टीमेटली H2O के निकल जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH2 रह जाएगा। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिलेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। और ये जो स्टेप है ना, इसको हम लोग यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं LiLH4 ना, सो ये प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग CH3OH प्लस CH3CH2OH लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो किसी एस्टर को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन करेंगे तो भी हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है ना। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल हम लोग को मिल सकता है, दिस वन इज मिथानॉल एंड दिस वन इज इथेनॉल। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ओके ना। थर्ड मेथड हम लोगों ने क्या देखा, थर्ड मेथड देखा हम लोग ने फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है, कैसे मिलेगा, देखो हम लोग ने from aldehydes और ketones we can get this alcohol, ओके ना। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो क्या मिलेगा, हम लोग को इधर एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन मिलेगा, और क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, ओके ना। सिमिलरली अगर इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा। हम लोगों ने ये भी देखा था अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड देगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन करने से क्या देगा, हम लोगों को कीटोन देगा। और इन रिवर्स वे, अगर रिवर्स वे क्या होगा, इस एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो भी हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है। एल्डिहाइड को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ओके ना। सो दिस इज अनदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ओके ना। तो अभी देख लेते हैं ये रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सपोज किसी एल्डिहाइड को ले लेते हैं, नंबर 3 इज फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोगों को मिल सकता है अल्कोहल, कैसे मिलेगा, बाय रिडक्शन, ओके ना। सर रिड्यूस हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों के पास है, H2Ni, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, various reducing agents are there, okay ना। by applying which we can reduce this aldehyde to ketone, okay ना। तो यहाँ पे देखो अगर एक एल्डिहाइड लेते हैं, अगर यहाँ पे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, ओके ना, इसका नाम है इथानॉल, और इसको हम लोग, इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड, ओके ना। इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे H2Ni, ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ Na C2H5OH, ओके ना, और इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर रिड्यूस करेंगे तो भी ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा,
So we will get CH3 bond CH2 bond OH। अभी क्वेश्चन आएगा सर ये कैसे फॉर्म हो गया? हम लोग यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करेंगे तो यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड होने से आपको अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे मिला? देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ओके ना, ये कितना डिग्री अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इथेनॉल। ओके ना, ये हम लोग ने जब एल्डिहाइड लिया तो हम लोग क्या मिला? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर कीटोन लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। सो ले लेते हैं कीटोन CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड अपॉन CH3। ओके ना, इसका नाम क्या है? प्रोपान टू ओन, और इसका नाम है प्रोपानोन, और इसका कॉमन नेम है एसीटोन। ओके ना, इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। ओके ना, सो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। ओके ना, सो फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यू कैन गेट अल्कोहल। एल्डिहाइड से हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा 2 डिग्री, और कीटोन से हम लोग क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ओके ना, सो दिस इज द थर्ड मेथड। ओके ना, थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम लोगों ने यह देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है। सर कैसे मिलेगा अल्कोहल? एल्कीन को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे एल्कीन को, देन हम लोग को मिलेगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके ना, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और दिस एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। ओके ना, फोर्थ मेथड इज दैट फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन से हम लोग को क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? देखो रिएक्शन कंसीडर कर लो, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपीन। इसका नाम क्या है? प्रोपीन। इसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर यूज करेंगे तो हम लोग को एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो इस H2SO4 को हम लोग लिख सकते हैं HOSO3H, लिख सकते हैं H+OSO3H माइनस। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा? ये जो CH2 है ना, ये H+ को ले लेगा, ये CH3 हो जाएगा, और SO3H माइनस जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? CH3 बॉन्ड CH, और इसके ऊपर ये OSO3 आ जाएगा, यहाँ पे OSO3H, और ये वाला सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा बन जाएगा। ओके ना, इसका नाम है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके ना, इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे आपका HOH ये बॉन्ड टूट देगा, ओके ना, ब्रेक कर देगा, तो अल्कोहल मिल जाएगा। तो देखो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। ओके ना, सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, क्यों फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने ये रिएक्शंस डिस्कस कर लिया था। ओके ना, सो इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ओके, so this is from this alkene we can get this alcohol, we can get this alcohol. So this is the fourth method. Fifth method is that from amine. Amine से हम लोग को alcohol मिल सकता है। ओके ना, amine, what is the formula of amine? amine का formula क्या है? सर amine का formula है RNH2। क्या है? RNH2। So fifth method is that from amine, from amine से हम लोग को alcohol मिल सकता है। इसका formula है RNH2। ओके ना, कैसे मिलेगा सर? एमाइन को अगर आपका नाइट्रस एसिड से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को अल्कोहल मिल जाएगा। ओके ना, सो एक रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज R ले लेते हैं CH3 बॉन्ड NH2 मिथाइल एमाइन, CH3 बॉन्ड NH2 मिथाइल एमाइन, और वी कैन टेक CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 इथाइल एमाइन। इसको अगर नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO2। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं HONO HNO2, कोई गलती नहीं। ओके ना, सो ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा, बाकी क्या रह गया? OH रह गया, यहाँ पे क्या रह गया? CH2, तो मिल जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, आपका इथेनॉल मिल गया। ओके ना, अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या निकला? साइड प्रोडक्ट निकला आपका N2 प्लस H2O, N2 ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस H2O। ओके ना,
सो वैसे ही कोई प्राइमरी एमाइंस को अगर हम लोग लेते हैं और इसको नाइट्रस एसिड से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ओके ना। सो दिस इज द फिफ्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ओके ना, और आज हम लोग ने फिर से रिवाइज कर लिया इसको, ओके ना। सो नाउ इन आवर टुडेस क्लास वी विल डिस्कस द सिक्स्थ मेथड, ओके। Sixth method is that from Grignard reagent, Grignard reagent से हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं ना। आप लोगों ने सुना Grignard reagent का नाम, क्लास 11 में हम लोगों ने Grignard reagent के बारे में पढ़ा था ना। So sixth method is that from Grignard reagent, Grignard reagent, फ्रॉम Grignard reagent, इसका फॉर्मूला है आपका RMgX, बोले तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ओके ना। ये जो रिएजेंट है ना, इसको Grignard reagent बोला जाता है क्योंकि ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डेवलप किया था, डिस्कवर किया था, उनके नाम अकॉर्डिंग, उनका नाम के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है, ओके ना, Grignard। और Grignard को ये रिएजेंट डेवलप करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, ओके ना, बिकॉज दिस रिएजेंट इज वेरी मच यूजफुल, ओके ना। इसको यूज करके बहुत सारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, ओके ना। सो दिस इज वेरी मच यूजफुल। सो सिक्स्थ मेथड इज दैट फ्रॉम Grignard reagent, Grignard reagent से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके ना। सर कैसे करेंगे अल्कोहल प्रिपेयर, देखो अगर Grignard reagent को RMgX, ओके ना, Grignard reagent को अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, अब एक क्वेश्चन आएगा सर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, वहां से जाके निकाल लो। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या है फॉर्मूला फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO, ओके ना, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। अगर Grignard reagent को अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ओके ना। नंबर बी, अगर Grignard reagent को अगर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अगर किसी दूसरा एल्डिहाइड के साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सो एल्डिहाइड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितना सारा एल्डिहाइड है ना, बाकी जो एल्डिहाइड के साथ अगर Grignard reagent से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ओके ना। तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ओके ना। एंड नंबर सी इज दैट Grignard reagent को अगर हम लोग कीटोन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, कीटोन के साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे, साथ फॉर्मूला क्या होगा इसका कीटोन का, अच्छा ये जो एल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं RCHO, ओके ना। सो दिस इज एल्डिहाइड, सो कीटोन का फॉर्मूला है RCOR, ये कीटोन। सो अगर Grignard reagent को अगर कीटोन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, हम लोग को मिल जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। सो दिस इज द सिक्स्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent, ओके ना। खत्म नहीं हुआ है, अभी रिएक्शन बाकी है। यहाँ पे सिंपल आइडिया ले लो, Grignard reagent को अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो 1 डिग्री, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड तो 2 डिग्री, और कीटोन के साथ मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अभी इसका रिएक्शंस देख लेते हैं, ओके ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे, बाद में ये तो देखो फर्स्ट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन ऑफ Grignard reagent विद फॉर्मेल्डिहाइड। चलो एक Grignard reagent ले लेते हैं, सपोज CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड Br। सर ये क्या है, ये एक Grignard reagent है, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ओके ना। सो दिस इज वन टाइप ऑफ Grignard reagent। उसके साथ अगर हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है सर, HCHO, और इस HCH को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड H, ओके ना। इसको फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड H, ओके। और ये रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके ना। सो दिस ड्राई ईथर एक्ट्स एज सॉल्वेंट,
ये ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, ओके ना। जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, देखो क्या मिलता है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड हो, इस बॉन्ड में दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस विल बी डेल माइनस, ये डेल माइनस होगा क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में से उसकी तरफ खींच लेगा। कॉन्सिक्वेंटली ये जो कार्बन है ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिवीजन हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पे देखो ग्रिग्नार्ड डिवीजन में this one is magnesium is electropositive in nature, so this is Mg is del plus, consequently this carbon is del minus, this carbon is del minus, so CH3 del minus, Mg plus del plus, okay। so जब ट्रीटमेंट अगर करेंगे ना तो यहाँ पे देखो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ओके। so this CH3 minus it will attract this carbon to form an addition product। ये CH3 जो है ना, मिथाइल ग्रुप जो है ना, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिवीजन कार्बन को अटैक कर लेगा, करने से क्या होगा, एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके ना। चलो देख लेते हैं कैसे फॉर्म होता है। तो ये CH3 माइनस आके यहाँ पे धक्का मारता है जाके, ओके ना। जब भी धक्का लगाएगा ना तो देखो ये कार्बन का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सर कैसे होगा, यहाँ पे देखो हम लोग को पता है कार्बन का बैलेंस क्या होता है, 4, 1 2 3 4, बट ये जब अटैच हो जाएगा ना तो कार्बन का बैलेंस क्या हो जाएगा, 5। कार्बन का बैलेंस 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, जब ये कार्बन अटैच होगा ना तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, बैलेंस बढ़ने से क्या होगा, ये उसका जो पाई बॉन्ड है इसको टिक मार के निकाल देगा इस तरह, ओके ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर दे देगा तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो इसको लिखते हैं H बॉन्ड C लिख लिया, बॉन्ड हाइड्रोजन लिख लिया। अच्छा नीचे से कौन अटैक कर रहा है, CH3 अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे CH3 को लिख लिया, यहाँ पे CH3 को लिख लिया, ओके ना। अभी देखो जब CH3 अटैक करेगा ना इसको तो इसका बैलेंस ही बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड को निकाल के उस तरफ दे दिया, तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर गया ना वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अभी देखो ये जो O माइनस है ना ये ऐसा स्टेबल नहीं रहेगा, नेगेटिव ये स्टेबल नहीं रहेगा, है उसको एक किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पीशीज की जरूरत है, तो ये किसको ले लेगा, देखो यहाँ पे कहा किसको ले लेगा, Mg+Br इसको ले लेगा, ओके ना। सो दिस O माइनस will attack this Mg+Br, ओके ना। सो इट विल फॉर्म दिस एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी तो इसको अल्कोहल बना सकते हैं सर कैसे बनाएंगे, देखो बना लेते हैं इसको हाइड्रोलाइसिस कर दो, पानी डाल दो इसमें, बन जाएगा अल्कोहल, ओके ना। तो हाइड्रोलाइसिस मार दो, हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ पे H2 को हम लोग स्टाइल करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग HOH ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखने से क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ऐसे क्या होगा देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो क्या हो गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, देखो हम लोग का अल्कोहल प्रिपेयर हो गया, सर साइड प्रोडक्ट क्या बाकी रह गया, साइड प्रोडक्ट बाकी रह गया आपका MgBrOH, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका MgBrOH, ओके ना। मैग्नीशियम का बैलेंस 2 है तो 2 हाथ में 2 रह जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग MgOH Br ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखो ये वाला क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, द नेम ऑफ दिस अल्कोहल इज इथानॉल, इसका नाम क्या है, इथानॉल, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी फॉर्मेल्डिहाइड लिया, नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइड लेके देखते हैं। एल्डिहाइड लेने से क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, वही सेम रिएजेंट ले लो, CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड Br, ओके ना। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एल्डिहाइड, किसी एल्डिहाइड ले लो, सपोज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, पहले क्या लिया था, H लिया था ना। अगर यहाँ पे अगर H होगा ना तो इसको ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, ओके ना।
लेकिन एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर में ये पोर्शन रहना जरूरी है, C=H रहना जरूरी है। अगर H होगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, और H को छोड़ के अगर किसी R ग्रुप होगा ना तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड होगा। ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड हो जाएगा, ओके ना। तो अभी इसको एल्डिहाइड लेते हैं, सपोज CH लेते हैं, CH लेने से क्या हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड हो जाएगा। तो चलो ये ग्रिग्नर रिएजेंट, ये है आपका एसिटिल्डिहाइड, इसको ड्राई ईथर से ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर ड्राई ईथर सॉल्वेंट कंडीशन में ट्रीटमेंट करते हैं। करने से क्या मिलेगा, देखो ये वाला है आपका डेल माइनस, तो ये है आपका डेल प्लस, ये आपका डेल माइनस, तो ये आपका डेल प्लस। अभी क्या होगा, ये CH3 ग्रुप जो है ना यहाँ के यहाँ पे अटैच कर देगा। अटैक करने से क्या होगा, इसका बैलेंस बढ़ जाएगा। बैलेंस बढ़ने से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ना इसको निकाल देगा इस तरफ, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव होने के बाद क्या करेगा, ये MgBr को ले लेगा। चलो लिख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे H, नीचे से कौन आ रहा है, CH3 आ रहा है, तो लिख लो यहाँ पे CH3। ऊपर कौन है, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, O वाला माइनस हो जाएगा, ये ले लेगा MgBr को, तो MgBr हो गया, OMgBr हो गया। अब इसको हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ओके ना। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो क्या मिलता है, CH3 बॉन्ड CH रिप्लेस CH, यहाँ पे क्या है आपका बॉन्ड OH, तो इसको यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं हम लोग बॉन्ड OH, ओके ना। CH3 बॉन्ड CH, OH बॉन्ड OH लिख लिया, और एक CH3 लिख लिया, इसको साइड में लिख लेते हैं, ओके ना। सो देखो हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया, ओके ना। प्रोपान 2 ऑल, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखा, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और अगर अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड किसी और कोई अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अभी इस एल्डिहाइड की जगह अगर हम लोग कीटोन लेंगे ना तो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ओके ना। सो ये जो नेक्स्ट रिएक्शन जो है ना ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ कीटोन का जो रिएक्शन है ये आप लोग खुद से लिखेंगे, ओके ना। यू विल प्रिपेयर दिस 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग दिस ग्रिग्नर रिएजेंट एंड कीटोन, दिस इज योर होमवर्क, ओके। सो दिस का नाम है एसिटिल्डिहाइड, ओके। सिंपल बात है, अगर कीटोन अगर लेंगे ना तो यहाँ पे CH3 होगा, ये H की जगह क्या होगा, CH3 होगा, और यहाँ पे भी इस H की जगह क्या होगा, CH3 होगा, ओके। सो 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। So this is the 6th method. Next method is from carboxylic acid and acid derivatives. From carboxylic acid and acid derivatives. So next method is from carboxylic acid and acid derivatives. Okay. Number 7 from carboxylic acid and acid derivatives. Acid derivatives, okay. So from this carboxylic acid and acid derivatives we can prepare alcohol, okay ना। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग को ये बात पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर हम लोग स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, अल्कोहल मिलेगा, ओके ना। सो चलो रिएक्शन देख लेते हैं। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं, सपोज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ना। इसका नाम है इथानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे ना सर, कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको स्ट्रांगली रिड्यूस करना पड़ेगा, मींस किसी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। सपोज अगर हम यूज करते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके ना। अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा सर, देखो कैसे कन्वर्ट होगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। सपोज वी आर एडिंग 2 molecules of hydrogen molecule, और 2 H2 molecules. So after adding this pi bond will break, ये pi bond break हो जाएगा, ब्रेक होकर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन चला गया, बाकी रह गया कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, जब ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से H2 निकल जाएगा, H2 और निकल जाएगा। बाकी क्या रह गया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। इथानॉल प्लस H2O, ओके ना।
तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके ऐसे अगर हम लोग स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इथानॉल, ये आपका इथानॉल, ओके ना। सो दिस इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स, ओके ना। एसिड डेरिवेटिव बोले तो एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्रेट, ओके ना, इसको एसिड डेरिवेटिव बोला जाता है, ओके। तो चलो एक ले लेते किसी एसिड डेरिवेटिव, सपोज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C है। एसिड डेरिवेटिव्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसी एसिड से हम लोग ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके ना। सो दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। इस एसिटाइल क्लोराइड को भी अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, ओके ना, इन प्रेजेंस ऑफ H2Ni, ओके ना, और इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वी कैन गेट दिस अल्कोहल, वी कैन गेट दिस अल्कोहल। कैसे मिल सकता है, देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ओके ना, सपोज 2H2, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, बाकी देखिए दो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, बाकी क्या रह गया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH मींस इथानॉल प्लस HCl। तो देखो किसी एसिड डेरिवेटिव से भी हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एसिड क्लोराइड से हम लोग अल्कोहल मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग अगर लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसका एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला ऐसे है आपका CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नाम है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे लिख लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको भी अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे ना, इसको भी अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हम लोग को अल्कोहल मिलेगा। सर कैसे मिलेगा अल्कोहल, देखो कैसे मिलता है, ओके ना। तो यहाँ पे 4 मोलिक्यूल्स ऑफ H2, ओके ना, यहाँ पे लार्ज अमाउंट, यहाँ पे दिस एसिडिक एनहाइड्राइड शुड बी स्ट्रांगली रिड्यूस, ओके ना, इसको स्ट्रांगली रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड, और जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरा मोलिक्यूल आएगा आने से यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में ये वाला इस साइड हो गया, अब नीचे वाला साइड देखो, इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा। फर्दर अगर एक मोलिक्यूल अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, होने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का बैलेंस फुल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, देखो यहाँ पे बाकी नहीं गया, CH3 बॉन्ड C H2 बॉन्ड OH में CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या रह गया, CH3 बॉन्ड C H2 बॉन्ड OH, CH3 CH2 OH। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 OH, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ इथानॉल। और क्या मिला हम लोगों को, देखो और मिला हम लोगों को H2O मींस प्लस H2O, है ना। तो ऐसे ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से और किसी एसिड डेरिवेटिव से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके ना। सो दिस इज अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट आपका फ्रॉम ईथर से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके ना। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है, हम लोग ने डिस्कस किया था, ईथर का जनरल फॉर्मूला ROR, ओके ना। नंबर 8 इज फ्रॉम ईथर ETHER, ईथर, इसका जनरल फॉर्मूला है R बॉन्ड O बॉन्ड R, ओके ना, ईथर। इस ईथर को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है ना। दिस ईथर सपोज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिव्स अल्कोहल। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, सर इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथॉक्सीमीथेन, और इसको बोल सकते हैं हम लोग डाइमिथाइल ईथर बोल सकते हैं ना। इसको अगर हम लोग जब हम लोग इसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे मींस इसको जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को अल्कोहल मिलेगा। डाइल्यूट H2SO4 दिल H2SO4 मींस बोले तो इसमें क्या रहेगा, इसमें वाटर रहेगा, क्या रहेगा, वाटर, ओके ना।
तो यहाँ पे H रहेगा, तो रहने से क्या होगा देखो यहाँ पे ये आपका डेल माइनस, ये आपका डेल प्लस, ये आपका डेल प्लस, ये आपका डेल माइनस। सो माइनस वाला पार्ट क्या करेगा, ये प्लस वाला पार्ट को ले लेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें CH3OH, बाकी क्या रह गया CH3OH, बोले तो 2 molecules of CH3OH, CH3OH अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो हम लोग ने सिमेट्री की तरह ले लिया, अगर अनसिमेट्री की तरह लेते हैं तो क्या होगा, चलो ले लेते हैं इसको, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, इसको अगर सेम रिएजेंट से अगर ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे आपका वाटर होगा HOH, सिमिलर होगा डेल माइनस डेल प्लस, तो वैसे ही होगा, ये होगा डेल प्लस, ये होगा डेल माइनस, तो CH3 CH2O माइनस H प्लस CH3OH हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया CH2H5OH, तो प्लस C2H5OH, ओके ना। तो देखो यहाँ पे अगर सिमेट्री की तरह लेंगे ना तो हम लोग को सेम टाइप ऑफ अल्कोहल मिलेगा, और अगर अनसिमेट्री की तरह लेंगे आपको तो हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल मिलेगा, ओके ना। यहाँ पे देखो मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमको, मिथानॉल एंड इथानॉल, ओके ना। वी आर गेटिंग ए मिक्सचर ऑफ मिथानॉल एंड इथानॉल, ओके। So this is from ether, and next one is from amide. Amide से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके ना। सर कैसे करेंगे amide से अल्कोहल, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल याद कर लेते हैं amide का फॉर्मूला क्या है। amide का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम amide, ओके, हम लोग पता है amine का फॉर्मूला हम लोग पता है क्या है, RNH2R NH2, amine का फॉर्मूला है, और इसके बीच में अगर एक CO लग जाता है ना, C डबल बॉन्ड लग जाता है ना, तो ये एमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एमाइड हो जाएगा, ओके ना। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एमाइड, R बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एमाइड। तो इस एमाइड से भी हम लोग R बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, इस एमाइड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2, ये आपका एक एमाइड है, इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे ना इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, और अगर 2 हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होने से क्या होगा देखो NH3 एमोनिया निकल जाएगा, क्या बाकी रह जाएगा CH3 CH2OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH plus ammonia NH3, okay na. So this is the alcohol, so there are different methods for the preparation of alcohol. हम लोगों ने alcohols का preparation के लिए हम लोगों ने बहुत सारे methods देखा, चलो फिर से एक बार याद कर लेते हैं कैसे प्रिपेयर किया हम लोगों ने। पहले क्या हम लोगों ने एल्काइल हाइड से ट्रीटमेंट कैसे किया था हम लोग, NaOH और KOH से ट्रीटमेंट और AgOH से ट्रीटमेंट करके किया था। सेकंड वाला क्या किया था हम लोग ने, एस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिल गया। नेक्स्ट क्या था हम लोगों ने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, ओके ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या था एल्कीन से, एल्कीन को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा, और इसको हाइड्रोलाइसिस करने से हम लोग को अल्कोहल मिल जाएगा, ओके ना। एल्कीन से किया था, उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, उसके बाद क्या था हम लोग एमाइंस, ओके ना। एमाइंस को अगर हम लोग नाइट्रस एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, अल्कोहल मिल जाएगा, ओके ना। After that we have discussed about the preparation of alcohol from Grignard reagent. देखा हम लोगों ने अगर Grignard reagent formaldehyde के साथ ट्रीटमेंट होता है तो 1 डिग्री, किसी एल्डिहाइड के साथ ट्रीटमेंट होता है अदर देन formaldehyde तो 2 डिग्री, और कीटोन का होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर होता है, ओके ना। After that we have discussed about the preparation of alcohol from carboxylic acid and acid derivatives, ओके ना। कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को अगर हम लोग स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल मिल सकता है, ओके ना। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आपका ईथर से, ओके ना। ईथर को अगर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, और लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रॉम एमाइड को अगर हम लोग स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे तो भी अल्कोहल मिल जाएगा, ओके ना। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, दीस आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ओके ना। सो आज के लिए इतना ही, अल्कोहल का जितना सारा प्रिपरेशन है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ओके ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बाकी रह गया है, यहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन लगभग खत्म है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो फॉर टुडेस क्लास आफ्टर दिस, थैंक यू एवरीवन।